آپ جانتے ہیں ہماری حویلی میں عورت کی مرضی نہیں چلتی، رشتوں میں یا گھریلو معاملات میں کہیں بھی۔ ہمارے یہاں عورت کو پیار، توجہ اور اہمیت دی جاتی ہے، مگر جو رشتوں میں احترام اور محبت ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوئی کبھی۔ میری شادی کہیں بھی ہوتی مجھ سے پوچھا نہ جاتا اور جانے کیسی زندگی گزارتی، مگر یہاں میرا دل راضی تھا۔ مجھے بس صرف آپ کی ناپسندیدگی کا ڈر تھا۔ آپ راضی نہیں تھے، میں جانتی ہوں۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، آپ ان کی جگہ کسی کو نہیں دے پا رہے تھے، پھر بھی مجھے قبول ہے۔ آپ کے ساتھ شادی ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے خان صاحب۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے بول رہی تھی۔ ریما نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، چاہے خانداور راضی ہو یا نہ ہو، قبول نہ کرے، مگر جو بھی ہو اپنی طرف سے سب کلیئر رکھنا۔ اس نے وہی کیا، وہ قبول کر چکی تھی، اس لیے بتا دیا۔ خانداور اگر خود کو کمتر سمجھے تو غلط ہے۔ خانداور کی حیرت بھری نظر اس پر ٹکی تھی۔ وہ لڑکی جو اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، جو مکمل اور حسین تھی اور جو بہترین ڈیزرو کرتی تھی، مگر وہ خانداور کے نکاح میں اپنی خوشی سے آئی تھی۔ کیوں؟ وہ دل سے قبول کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ داور کے دل میں گڑ گئے تھے۔ اس کا پالا پہلی بار ایسی لڑکی سے پڑا تھا جو اسے اہمیت دے رہی تھی۔ اس کی پہلی شادی تو صرف ضرورت کا رشتہ تھا، اس کے لیے یہ سب خوشنما خیال جیسا تھا۔ تم جانتی ہو میں بے اولاد رہا ہوں، اگر مجھ میں کوئی کمی ہوئی اور تم بھی اولاد سے محروم رہی تو ایسی زندگی گزار لوگی کیا میرے ساتھ؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا، جیسے امتحان لیا۔ اگر مجھ میں کمی ہوئی، میں ماں نہ بن سکی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے سر جھکا کر آہستگی سے سوال کیا تو چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ ہرگز نہیں، میں ایسا جاہل مرد نہیں ہوں۔ وہ سختی سے تردید کر گیا۔ میرا نے سر اٹھایا، میں بھی جاہل نہیں ہوں۔ وہ کچھ معصومیت اور کچھ خفگی سے بولی تھی۔ داور بے ساختہ مسکرایا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنی طرف کیا تھا، اسے آنکھوں میں یکدم دلچسپی اتر آئی تھی۔ وہ ایک جملے میں اس کا دل جیت گئی تھی۔ وہ جاہل نہیں تھی، وہ وفا کا وعدہ کر رہی تھی، اتنی معصومیت سے، اتنی اپنائیت سے۔ میرا اس کے حصار میں دھڑکتے دل سے سمٹ گئی۔ داور کا دیکھنا ہی اسے لرزا گیا۔ آپ اپنی بیوی کی جگہ مجھے نہیں دے سکتے کیا؟ وہ بوکھلا کر اپنی بات دہرانا چاہ رہی تھی۔ ہمارا تعلق بس ضرورت کے تحت تھا۔ آغا جان نے رشتہ کیا اور میں نے قبول کر لیا۔ میں نے پورے دل سے رشتہ نبھایا بھی، مگر وہ میرے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر پائی، کیونکہ اس کے لیے یہ رشتہ زبردستی کا تھا، جو ایک الزام پر ختم ہو گیا۔ ہم ایک چھت تلے دو اجنبیوں کی طرح تھے۔ اب یہ تم پر میں چھوڑتا ہوں۔ تم بھی اس کی طرح صرف رشتہ نبھاؤ گی تو ہم صرف میاں بیوی ہوں گے۔ اگر تم چاہو تو میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے اپنا وہ مقام بنا لو جو آج تک وہ نہیں بنا سکی تھی۔ خان داور نے گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے گالوں کو ہاتھ سے چھوا۔ میرا سمٹ سی گئی۔ خان صاحب میں چینج کر لوں؟ وہ حواس باختگی سے وضاحت دیتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا کو لگا دل شدت کے مارے دھڑک دھڑک کا مار دے گا۔ چینج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سنگھار لوگوں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے تھا تو مجھے تفصیل سے دیکھنے دو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا دلکشی سے مسکرایا۔ میرا جھیپ گئی۔ چہرے پر میک اپ کی سرخی سے زیادہ سرخی تو خانداور کی گہری نظروں کی وجہ سے تھی۔ شکریہ مرحا، مجھے تمام خامیوں سمیت قبول کرنے کا۔ تم اگر وفا کا وعدہ کرو تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں۔ محبت نہیں، عشق کروں گا تم سے، اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہوں گا۔ وہ اسے خود سے لگائے وعدہ کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سچائی مرحا کے دل میں سکون بن کر اتری تھی۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں، قسم کھاتی ہوں کہ آپ کو دل سے قبول کیا ہے اور مرتے دم تک یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ وہ دل سے بول رہی تھی، لہجے میں محبت اور سچائی تھی۔ خان داور اسے خود میں بھیج گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ نکاح ہو جانا اور میاں بیوی کا تعلق بن جانا ہی بس محبت ہوتی ہے۔ اس کی پہلی بیوی نے کبھی اس سے وفا کے دعوے نہیں کیے۔ وہ اسے خوش رکھتا تھا، وہ اپنی زندگی میں مگن رہتی، وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا اور کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتی تھی پھر بھی وہ کہ وہ کیا چاہتا ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے۔ اولاد نہ ہونے پر خان داور نے ہر علاج کروایا، پھر بھی الزام اسی کے سر لگا اور اس ضرورت کے رشتے کا درد بھرا انجام ہو گیا۔ داور کے لیے تو بس یہی زندگی تھی اور ایسی زندگی وہ دوسری بار چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن ایک بار پھر کسی لڑکی کو زبردستی اس کے ساتھ باندھا گیا تو اسے یقین تھا وہ لڑکی جو مکمل اور بہترین ہے، داور جیسے بٹے ہوئے مرد کو جبراً قبول کر رہی ہے۔ لیکن مرحا نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ اس سے مرعوب تھی، وہ اسے دل سے قبول کر کے آئی تھی اور اس کی من چاہی نہ ہونے پر رو رہی تھی۔ اسے محبت سے خود میں سمیٹتے خان داور کو زندگی میں پہلی بار محبت کا احساس ہوا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو صبح پہلے سے زیادہ کہیں روشن تھی۔
उसने अपने सीने पर सर रख के सोते उस वजूद को देखा तो ज़िंदगी के खूबसूरत होने का एहसास रग रग में सिरायत कर गया। क्या कोई इंसान ऐसे दिल में धड़कन बनकर भी उतरता है? क्या कोई ज़िंदगी से बढ़कर भी हो सकता है? वो मिरहा को तकने लगा, उसके चेहरे से बाल समेट कर पीछे करता, उसकी पेशानी पर लब रख कर सुकून से आंखें मूंद गया। क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसे छू कर सुकून मिल जाए, जिसके लम्स पर चैन मिले? अपने चेहरे पर नरमी और मोहब्बत से लबरेज लम्स महसूस करती मिरहा नींद में कसमस आई। दावर ने मुस्कुराकर उसके बाल संवारे, वो आंखें खोल गई। सामने पहला मंजर उस मेहरबान चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट नजर आने का था। कितना खूबरू था वो, दिलकश और शानदार, और वो उसका था। सुबह बखैर जाना। दावर ने मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाया तो वो होश में आई। यकदम चेहरा सुर्ख हुआ और सिमट कर चेहरा छुपा गई। ये मेरी ज़िंदगी की अब तक की सबसे हसीन सुबह है। मैं अपने आने वाले हर दिन का आगाज़ ऐसा ही चाहता हूँ, खान दावर ने मोहब्बत से कहा तो मेरा खामोश रही। दिल की धड़कन का आज कोई अलग सा ही साज था। शर्माई लिजाई सी वो चेहरा उठाने में नाकाम हो रही थी। कुजा के नज़र मिलाती खान दावर ने हंसी दबाकर उसका सर थपथपाया और तकिए पर सुलाकर ब्लैंकेट हटाता फ्रेश होने चला गया। मेरा अपने बाजू में चेहरा छुपाकर मुस्कुराई। क्या ऐसा भी हो सकता है एक नाराज़ शहजादे को अनचाही शहजादी से मोहब्बत हो जाए? वो चोर नज़रों से वॉशरूम के दरवाजे को तक रही थी। क्या ऐसा भी हो सकता था कि खान दावर की पहली मोहब्बत मिरहा बन जाए, और मोहब्बत भी ऐसी जानलेवा? वो जब तक निकला नहीं मिरहा दरवाजे को तकती रही, और जब वो फ्रेश सा बाहर निकला तो वो ब्लैंकेट में चेहरा छुपा गई। क्या ऐसा मुमकिन था कि मिरहा को एक ही रात में वो अपने नर्म लबो लहजे और तवज्जो भरे अंदाज से अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर गया? उसका लापरवाह दिल मोहब्बत की बारिश से जल थल हुआ था। उसने ब्लैंकेट आंखों से हटाकर सामने देखा। वो कमीज़ के बटन बंद करके नम बालों को ब्रश कर रहा था। वजीद चेहरे पर नरमी भरे तासुरात थे। परफ्यूम उठाते खान दावर की नज़र आईने में नजर आते उसके अक्स पर पड़ी। ब्लैंकेट में छुप कर उसे देखती नर्म दिल मोहब्बत से गूंधी वो लड़की जो ज़िंदगी से भरपूर थी। वो दिलकशी से मुस्कुराया। उठ जाओ मेरा, क्या तुम चाहती हो पहली सुबह तुम कमरे में दिन ढले निकलो और सबकी मुस्कुराती नज़रों का सामना करो? वो वजाहतें दो और नाकाम रहो। परफ्यूम स्प्रे करके मर्दाना शॉल उठाकर अपने कंधे पर फैलाते खान दावर ने शरारत से कहा। नक्शा ऐसा खींचा कि वो परेशान उसकी झट से ब्लैंकेट से निकली और उठकर बैठ गई। हरगिज़ नहीं, मैं तो बस जाग चुकी थी। वो बौखलाई हुई सी अपने उलझे बाल समेट कर तेज़ी से बिस्तर से उतरी और देखते ही देखते वॉशरूम में घुस गई। अपना ड्रेस तो लेती जाओ मेरा, क्या बाद में मुझसे ड्रेस मांगने का सोचकर खाली हाथ गई हो? उसे देखकर हंसी दबाते दावर ने पीछे से आवाज़ लगाई और उसकी तवक्को के अन मुताबिक वो अगले ही सेकंड बाहर थी। ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने लिए एक कदरे हल्के काम वाला मगर गहरे रंग का रिवायती लिबास निकाला और फिर वॉशरूम में बंद हो गई। उसकी तेजियां और बौखलाहट खान दावर को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। उस रिश्ते की असल खूबसूरती तो वो अब महसूस हो रहा था। ड्रेसिंग से मुंह दिखाई का तोहफा उठाकर उसके इंतजार में सोफे पर जाकर बैठ गया। जब वो बाहर निकली, अकेले बाहर जाने का सोचकर शर्मिंदगी और घबराहट में मुब्तला हुई, मगर सोफे पर बैठे खान दावर को देख ठिठक गई। तैयार हो जाओ, इकट्ठे बाहर जाएंगे। वो शायद उसकी घबराहट देख चुका था, इसलिए नरमी से कहा। मेरा जल्दी से बाल ब्रश करने लगी। दावर की नज़रें खुद पर महसूस करके हाथ लर्जे। कंगन जैसे तैसे बाजुओं में डालकर शॉल ओढ़ गई। फ्रेश दमकता चेहरा किसी भी मेकअप और आराइश से पाक था। खान दावर उठकर उस तक पहुंचा। मुंह दिखाई में ली नफीस सी चेन जो खानजादा ने उसे लाकर थमाई थी। वो तब तो बददिली से उसे किसी तरह से मिरहा के हवाले करने का सोच चुका था, मगर अब वो चेन खुद उसकी सुराहीदार गर्दन में डालकर लॉक कर गया। झुककर उसके माथे पर लब रखे और मेहंदी लगे सर्द हाथ अपनी नर्म गरीफ में लिए अपने साथ लेकर उसे बाहर निकला। मिरहा उसके दिए मान और मोहब्बत पर उसकी असीर हो रही थी। चेहरे पर गुलाल बिखरा था, गोया किसी मेकअप की ज़रूरत भी ना थी। गुलजान ठीक कहती थी, आफरीदी हवेली वाले नफ़रतें करने में भी माहिर हैं, मगर मोहब्बत करने और मोहब्बत जताने में भी उनका कोई सानी नहीं है। या अल्लाह, इस हवेली के बड़े से लेकर छोटे तक का हर लड़का घुन्ना और मीसना है। कल कैसे मुंह बनाकर घूम रहे थे ये खान साहब, और आज दोनों का रंग रूप ही अलग है। रीमा ने मिरहा के करीब आते तबसरा किया। मिरहा का चेहरा सुर्ख हुआ तो वो मुस्कुराहट दबा गए। रीम, बस तौबा कर लो, हर एक पर तबसरा। प्रिहान ने उसे टहोका मारा तो वो नाक चढ़ा गई। हाँ भाई, पर्दे में बिठा दो सबको, रीम न दिखे बस, वरना तबसरे तो होंगे। वो भी ढिठाई से सर झटक कर बोली। मिरहा ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उसका कुछ नहीं हो सकता। रियाज कहाँ है? मिरहा ने सवाल किया तो प्रिहान इर्द गिर्द नज़र दौड़ा गई। अपने पापा के पास था, अब मर्दान खाने में गया होगा। भाई, हर आने वाले मेहमान से उसका मिलना ज़रूरी है। प्रिहान की बात पर वो हंसी। मेहमान खुद उसका पूछते थे। सरदार साहब का बेटा तो इलाके में सरदार से ज़्यादा मशहूर और मकबूल था। ये छोटा जोड़ा कहाँ है भाई? उनकी सुबह नहीं हुई लगता है अभी तक।
रीमा को पूर्वा की याद सताने लगी। रेम, कुछ तो शर्म करो, मिरा ने उसे घूरा। वाह अभी बनो, तुम्हारे भी पर निकल आए, यानी शादी के बाद मिलना भी मना है। पूर्वा कल अपसेट थी बहुत, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम मान लो, तुम माँ बन लो मेरी। रीमा की बात पर मिरा ने कान पकड़ लिए। उससे कौन बहस करता। मैं भी परेशान रही, मगर ईसा भाई संभाल लेंगे, उनके साथ खुश रहती है, वो उसे उसी के अंदाज में डील करते हैं। प्रिहान का दिल इत्मीनान से भरा था। रीमा और मिरा का भी पूरा इत्तेफाक था इस बात पर। सच तो ये था कि अब वो उसे मानती थी, चाहे हालात जैसे भी थे, मगर पूर्वा सही इंसान के हवाले की गई थी। वो उसे बदलने पर मजबूर नहीं कर रहा था, वो उसे उसकी मासूमियत समेत कबूल कर चुका था। जैसे वो दीवाना था, कोई नहीं हो सकता था। उनके साथ बातें करती मिरा सुकून से मुस्कुरा रही थी। यही दोस्तें उसका सरमाया थी। प्रिहान ने उसे खान दावर से बदजन नहीं होने दिया था, और रीमा के समझाने की वजह से वो पहले खुद को क्लियर करने में कामयाब होकर मुतमईन नज़र आ रही थी। अगर वो ना बोलती तो शायद खान दावर भी अपना आप उस पर आश्कार ना करता। रिश्ता तो बन जाता, लेकिन शायद बहुत वक्त लगता वजाहतों में। गुलजान के पास बैठी तो उनके वसवसों पर बेसाख्ता उनके सीने लग गई। गुलजान के पास बैठी तो उनके वसवसों पर बेसाख्ता उनके सीने लग गई। गुलजान, शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने के लिए। आपने मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान दिया। गुलजान उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। दिल से सारे शकूक और वसवसे खत्म हो गए। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा मिरा, उसकी आदत है ख्याल रखना। तुम मेरे बेटे को खुश रखना प्लीज़। वो माँ थी, सब जानती और देखती आई थी। इस बार अपने बेटे को मुकम्मल जीते देखना चाहती थी। मैं वादा करती हूँ आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। मिरा ने इत्मीनान दिलाया। उनको कैसे बताती कि वो इंसान चाहे जाने के काबिल है। उसकी बेकदरी करके मिरा बदनसीब हरगिज़ नहीं बनना चाहती थी। रात गए जब वो कमरे में आया तो मिरा को अपने सामने देखकर दिल से मुस्कुराया। मिरा, तुम सरापा सकून हो, तुम मुझे अपना असीर कर रही हो। मेरे दिल में ये नया एहसास पैदा करने का शुक्रिया, मुझे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने का शुक्रिया। उसे अपने हिसार में लेकर सरगोशियाँ करता खान दावर जैसे ज़िंदगी को नए सिरे से जी रहा था। वो दोनों एक दूसरे को अनदेखी कैद में डाल रहे थे, खुद से बांध रहे थे। लगता था उनका मिलना ज़रूरी था। वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। वो मोहब्बत में मुब्तला हो रहे थे एक दूसरे की, और ऐसा खुद ब खुद होता जा रहा था। तो ऐसा होता है मोहब्बत का इल्हाम दिल में उतरता हुआ। क्या ऐसा हो सका कभी के इश्क में कैद हो जाने वाले कैदी कभी आज़ादी पा सके? हरगिज़ नहीं। खैर, अभी तो मोहब्बत का आगाज़ था, मगर अंजाम भी तय था। वो दोनों एक जैसे इंसान, मोहब्बत में मुब्तला लोग, इश्क की हद तक एक दूसरे को चाहेंगे और कैद इश्क में मरते दम तक खुलकर जिएंगे। ईसा मर्दान खाने से तेज़ी में अंदर अपने पोर्शन में आया था। सना बेगम थकन ज़दा सी सोफे पर बैठी थी। क्या हुआ मुरे, पूर्वा ठीक है ना? बेचैनी से सवाल किया। सना बेगम ने उसे बुलवाया था। वैसे इतनी देर नहीं हुई थी, यकीनन कोई वजह आई थी। पूर्वा के पास जाओ ईसा, बहुत अपसेट है, पता नहीं क्या हुआ है उसे, बात बात पर रो रही है, अब भी रस्मों से जान छुड़ाकर तुम्हारे कमरे में पड़ी है। सना बेगम उसके लिए परेशान हो रही थी। आपकी बहू को कोई मसला नहीं, बस वो आपके बेटे के लिए उदास हो गई है। रह नहीं सकती वो मेरे बगैर। उन्हें मुतमईन करने के लिए वो बालों में हाथ चलाता मगरूर लहजे में बोला। सना बेगम के साथ जरशे भी हंस पड़ी और उसके अंदाज को देखकर सना बेगम के साथ जरशे भी हंस पड़ी थी उसके अंदाज पर। अच्छा जाओ, ज़्यादा ड्रामे मत करो। सना बेगम ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा तो वो हाथ खड़े किए हार मानने के अंदाज में पलट कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदाज में बेकरारी थी, मगर नखरे करना भी लाजिम था। तुम्हें क्या हुआ, इतनी डल क्यों लग रही हो, थक गई हो क्या? सना बेगम जरशे की जानिब मुतवज्जो हुई। उसके चेहरे पर मुर्तनी छाई हुई थी। नहीं, बस तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अब ठीक हूँ। वो नर्म मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोली। ठंड लग गई होगी, मौसम भी तो इतना नहीं बदला ना अब। तुमने शॉल उतार कर रख दी, कल भी रात देर तक बिना शॉल के लिए घूमती रही हो। सना बेगम फ़िक्र से उसे देखने लगी। जरशे उनकी फ़िक्र पर झिलमिलाती आंखों से उन्हें तकने लगी। जाओ रेस्ट करो तुम। सना बेगम ने उसे कमरे में भेज दिया। वो सर हिलाती कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर ड्रेसिंग के सामने बैठी जेवर से आसाद होकर ड्रेस चेंज करने के लिए उठी। मूसा कमरे में दाखिल होता सीधा उसके पास पहुंचा, उसके गिर्द बाजू हाइल करके अपने सामने किया। यकीन करो, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरा इंतज़ार करने की ज़हमत आज भी नहीं करोगी। इतना प्यारा तैयार होती हो, लेकिन सारा सिंगार लोगों को दिखाकर जान छुड़वा लेती हो। तुम्हारे इस रूप पर हालांकि सबसे ज़्यादा हक मेरा है। खफकी से उसे देखता उसके हाथ से ड्रेस खींचकर दूर सोफे पर फेंक चुका था वो। जरशे हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। तो आप इसलिए भागे भागे यहाँ आए हैं? उसे शायद मूसा से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी जैसी जालिम बीवियाँ हो ना, तो शोहरों का यही हाल होता है,
जैसे मैं इमरजेंसी का कह कर सबके दरमियान से उठकर भागा। वो बेड पर बैठता नाराज़गी से बोल रहा था। शादी के हंगामों में जितनी मर्तबा ज़र्शे तैयार हुई थी, अभी वो दिल खोल कर देख भी नहीं पाता था कि वो सब चेंज करके सो जाती थी। आज सही हल ढूंढ कर आया था। खान साहब, मैं वाकई बहुत थक गई हूँ, बस ड्रेस चेंज करने दें। वो अपने भारी लिबास को देखती बेचारगी से बोल रही थी। खान की जान, मैं भी बहुत थक गया हूँ तुम्हारे नखरे देख देख कर। आज कोई बहाना नहीं, वो उसे खुद से लगा कर बोला। सरशे ने घबरा कर दूर होना चाहा, मगर उसके गिर्द मजबूत हिसार कायम कर गया था। तुम बेहद हसीन लग रही हो सरशे, और अगर मैं तुम्हें ना सराहूं तो तुम्हारा ये श्रृंगार बेकार है। उसके चेहरे को मोहब्बत से तकता वो बोला था। सरशे उसके हिसार में सिमटी शर्मा गई। रुखसार पर उसकी नज़र पड़ी तो दहक रहे थे उसके। हया की सुर्खी छा रही थी उस पर।